A'udzubillahiminash-shaytanir-rajeem. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum dear students. Hope you are all doing good. Today we are going to cover up the topic past participle. This is lecture number 6 from unit number 3 dreams, and the theme of this unit is ambition. Let's start the topic. Past participle. What is past participle? The past participle is often, but not always, formed by adding the suffix ed to a verb. Past participle is the third form of a verb, typically ending in ed in English. For regular verbs, adding ed to the base form creates the past participle. For example, past participle of cook is cooked, arrive is arrived, talk is talked, right? Okay. Past participle formed from irregular verbs may have ending like ent and n. For example, past participle of rot is rotten, past participle of learn is learned, and grow is grown. Okay. Past participle रेगुलर वर्ब्स में अगर देखें तो वी हैव डिस्कस इन आवर प्रीवियस वीडियो कि उसमें कहा हमने बताया था कि डी ई डी और टी पे जो है वो डी ई डी टी आई ई डी पे एंड होते हैं, जबकि जो इरेगुलर वर्ब्स में हमारे पास जो हैं वो ई एन टी और एन पे एंड होते हैं, राइट. आई हैव सम एग्जांपल्स हियर. ही वाज फिनिश्ड विद द प्रोजेक्ट. फिनिश्ड, राइट. The cookies were baked fresh this morning. Baked. She has burned dinner before. Burned. I have lived an interesting life. Lived. He has lied to me so many times. A past participle is a word that formed from a verb. Past participle वो लफ्ज़ होता है, ये वो word होता है जो कि फॉर्म होता है verb से, और कह सकते हैं कि इज़ यूज एज एन एडजेक्टिव. ये एडजेक्टिव के तौर पे भी यूज़ होता है. और टू फॉर्म वर्ब टेंस, और ये जो है वो टेंस के तौर पे मतलब एक टेंस भी फॉर्म करता है. एंड प्रॉबेबली एंड्स विद ई डी डी टी ई एन और एन. फॉर एग्जाम्पल मैंने वो रेगुलर और इरेगुलर इकट्ठे कर लिया आपके लिए, ठीक है. तो आपको पता होना चाहिए कि पास्ट पार्टिसिपल्स जो है वो थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब हैं, जो कि वेदर दे आर रेगुलर और इरेगुलर आपको पता होना चाहिए कि ई डी ई एन टी एन पे ये एंड होते हैं. इसके अलावा ये एडजेक्टिव के तौर पे भी यूज़ होते हैं और ये टेंस भी फॉर्म करते हैं, राइट. लाइकवाइज इफ़ आई सेड के पास्ट पार्टिसिपल इज़ यूज्ड इन फॉर्मिंग परफेक्ट एंड पैसिव टेंसेज एंड समटाइम्स एज एन एडजेक्टिव. तो एडजेक्टिव में जब ये यूज़ होते हैं तो वी कैन से आई हैव सम एग्जांपल्स हियर के हिज पेंटेड स्किन. इफ़ आई सेड हिज पेंटेड स्किन, तो यहाँ पे जो एडजेक्टिव है फ्रॉम टू पेंट, राइट, दैट हैज़ बीन टेकन. आई हैव फॉरगॉटन माई लाइन्स, तो यहाँ पे वर्ब टेंस है, फॉर्म टू फॉरगेट से, राइट. अच्छा, इफ़ आई सेड लेट्स लुक एट द वर्ब टू विस्पर. टू विस्पर, here's the past participle whispered. Here it is used as an adjective. The whispered word, right? So the whispered word, here it is used to form a verb tense. She had whispered him the answer. Okay, now read them separately. Functions of past participle. अब इसके functions क्या क्या हैं? It can function as perfect tense. It uses auxiliary verbs, helping verbs, auxiliary verbs such as has, have, had, and in some cases would have or should have to describe perfect or conditional aspects of the action. किसी भी action को बताने के लिए, डिस्क्राइब करने के लिए, बयान करने के लिए ये पास्ट पार्टिसिपल यूज़ होता है. और यूजुअली जो इसमें ऑक्सिलरी वर्ब्स, हेल्पिंग वर्ब्स यूज़ होते हैं वो हैज़, हैव और हैड है, राइट. एग्जाम्पल्स आर हियर. I have learnt the lesson. Have learnt, that is forming the tense. Mother has cooked the meal. Has cooked. Mother has cooked the meal. He had done his work. So done. Had done. So here have, has, had comes, right? You would have got more money if you had worked harder. तो ये conditional type sentences में भी यहाँ पे जो है इसने यहाँ पे टेंस फॉर्म किया.
तो हम कह सकते हैं कि इट कैन फंक्शन एज परफेक्ट टेंस, और जब ये परफेक्ट टेंस के तौर पे फंक्शन करता है तो वी यूजुअली यूज हैज़, हैव और हैड इन द सेंटेंसेस टू फॉर्म अ टेंस, राइट। तो ये जो लर्नड है, हैव लर्नड, हैज़ कुक्ड और हैड डन, तो दीज थ्री सेंटेंस आर फॉर्मिंग द टेंस, राइट। First two present perfect and the third one is past perfect and the last one is conditional aspect, right? It functions as an adjective to describe a noun, right? हमने बोला था कि ये एडजेक्टिव के तौर पे भी यूज़ हो सकता है जो कि नाउन को डिस्क्राइब करेगा, ठीक हो गया। सो नंबर 1, I have a colored calendar on my desk. Now colored calendar, what type of calendar? The calendar which is colored. बाबर आजम इज़ द मोस्ट वांटेड प्लेयर ऑन द टीम। कौन, किसकी बात हो रही है? प्लेयर की बात हो रही है, एंड नाउन के साथ हमारे पास आया है मोस्ट वांटेड। तो जो ये मोस्ट वांटेड प्लेयर है, ये उसकी बात हुई, तो मोस्ट वांटेड जो है वो प्लेयर को डिस्क्राइब कर रहा है। व्हाट टाइप ऑफ प्लेयर? मोस्ट वांटेड प्लेयर, जिसको बहुत ज़्यादा चाहा जाता है। We had a lot of roasted meat. What type of meat we have eaten a lot? That is roasted meat. So here in the above sentences, past participles colored, most wanted and roasted describes the nouns calendar, player and meat. So as we have discussed in our previous video, that was present participle. So we have read about present participles कि वो भी एज एन एडजेक्टिव जब यूज़ होते हैं तो वो आईएनजी फॉर्म में होते हैं, लेकिन यहाँ पे ये कौन सी फॉर्म में आ रहे हैं? ये पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में आ रहे हैं। और जब ये नाउन के साथ आते हैं तो ये क्या करते हैं? ये डिस्क्राइब करते हैं नाउन को, ठीक हो गया। ओके जी। पास्ट पार्टिसिपल इज़ यूज टू फॉर्म पैसिव वॉइस एज वेल, पैसिव सेंटेंसेस को भी ये फॉर्म करते हैं, एज वेल एज द पैसिव फॉर्म्स ऑफ इन्फिनेटिव्स। व्हाट आर इन्फिनेटिव्स? टू प्लस वर्ब इज इन्फिनेटिव फॉर्म। जेरेंड्स, जेरेंड्स आईएनजी विद वर्ब आईएनजी जो होते हैं यूज एज ए नाउन को हम जेरेंड्स कहते हैं। एंड द प्रेजेंट एंड perfect participles when used in this way it is called the passive participle। तो जब इस इन कंडीशन में यूज़ होते हैं तो हम इनको passive participle कहते हैं। For example, penicillin was discovered by Alexander Fleming in 1928 in as past simple passive के तौर पे was discovered by, right? It was discovered by, right? I think I have been misunderstood. I have been misunderstood. ऐसा लगता है कि मुझे गलत फहमी हुई है। ओके जी। लाइक एज प्रेजेंट परफेक्ट पैसिव आ गया क्योंकि यहाँ पे हैव यूज़ हो गया, राइट। ऊपर वॉज यूज़ हो गया तो ये पास्ट पैसिव इसने फॉर्म किया। नाउ हियर इज आई हेट बीइंग लाइड टू। मुझसे झूठ बोला जाए मुझे बुरा लगता है, मुझे नफरत है कि झूठ बोला जाए मुझसे, तो एज ए पैसिव सिंपल जेरेंड है, राइट। ओके, इफ़ आई सेड मैं पसंद करता हूँ कि मेरी कोई तारीफ़ करे, तो आई लाइक बीइंग प्रेज्ड, मेरी तारीफ़ की जाए। मैं नापसंद करता हूँ किसी पर जुल्म किया जाए, आई डिसलाइक बीइंग टॉर्चर्ड और बीइंग ऑप्रेस्ड। मैं चाहता हूँ कि इस कुर्सी को पेंट किया जाए, आई वॉन्ट दिस चेयर बीइंग पेंटेड, राइट। तो हम हैविंग प्लस बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म, ठीक है, आता है। ओके जी। He refused to give any information about the case being investigated. यानी जिस केस के बारे में इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है उसके बारे में ही इज़ नॉट विलिंग टू गिव इन्फॉर्मेशन। तो एज प्रेजेंट पैसिव, यहाँ पे प्रेजेंट पैसिव के तौर पे ये यूज़ हुआ है। ओके जी। हैविंग बीन नॉमिनेटेड 3 times फॉर एन ऑस्कर, 3 बार ऑस्कर के लिए नॉमिनेट होकर, ठीक है। हैविंग बीन नॉमिनेटेड, 3 बार नॉमिनेशन जो है उसका हुआ है ऑस्कर के लिए। ही इज़ वन ऑफ द मोस्ट फेमस डायरेक्टर। तो यहाँ पे ये ऐसे परफेक्ट के तौर पे, यहाँ पे परफेक्ट के तौर पे ये यूज़ हुआ है हैविंग, ठीक है, बाय पुटिंग हैविंग हियर। सो एज पैसिव परफेक्ट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल कैन इन इट्स सेल्फ हैव अ पैसिव मीनिंग, इसके अपने आप में ये पैसिव मीनिंग है। लाइक देयर वॉज अ हैंड रिटन नोट ऑन द टेबल, अगर आप हैंड रिटन को देखेंगे तो इसमें अपना ही एक पैसिव मीनिंग है कि यानी जो एक नोट था टेबल के ऊपर वो हैंड रिटन था, ठीक है। डैमेज्ड बैडली बाय द फ्लड, किसके ज़रिए से?
सैलाब के ज़रिए से जो चीज़ बहुत बुरी तरह तबाह हुई है, द स्कूल हैड टू बी रिबिल्ड। स्कूल किसकी बात हो रही है? फ्लड से जो चीज़ बुरी तरह से डैमेज हुई है, बर्बाद हुई है, तबाह हुई है, द स्कूल हैड टू बी रीबिल्ड। तो उसको स्कूल ने जो है दोबारा से रिबिल्ड करना है, तामीर करना है, सैलाब ने जिस चीज़ को नुकसान दिया है। This is it for today. Thank you so much. Hopefully, the lecture would be helpful for you to understand. Thank you so much.